So in the last class, we had started with storage classes. So we are again now on the same topic. We have to start with storage classes now. So storage class specifiers, these storage class specifiers, there are 4 types of storage class specifiers, that is auto, external, register and static. और मैंने आपको बताया था कि इसको हमें अपने वेरिएबल के आगे लिखना होता है. The keywords that we'll be using for auto, external, register and static. So these storage classes tells us about the storage duration of the variable, that how long an object exists, how long that variable exists in the memory. Yes, and what should be the scope of the variable that we'll be talking about, means where that variable can be used, where its value can be used, up till how many lines within the brackets. Yes, so we talk about 2 scopes. First is the program scope and another is the function scope. So program scope means that is the identified defined the outside function, and it is known in all the functions. So these are common and that can be used for all the functions, means what can be applicable, what rules of the scope can be applicable to your whole program. Yes, so there are some global variables that are used in the program, function definitions are there, or the function prototypes are also there. Then we talk about specifically the function scope. Yes, if I'm talking about only one function, so there we have to check that what um, there we have to, 1 minute, let me admit people. Yes, so there we have to check the variables which can be referred only inside that function body. So they those that scope is called function scope. Yes, then we talk about block scope. So block scope is another thing that we also check in our program. So that will tell you about the identifier that is inside a block. Yes, so we'll be talking about what is a block actually. Block scope begins at declaration, ends at right brace, and it is used for variables, function parameters, local variables of function. Yes, okay. So now we'll be talking about few programs. Yes, so there we can see in this example we can see void main, then here main का bracket यहाँ पर शुरू हुआ और यहाँ नीचे खत्म. ठीक है, then I have another code and that code is put inside another curly braces and it is ended with a curly brace, right brace. Yes, so inside see, if I now what we call main is a function, right? ठीक है, main is a function. So ये जो bracket है और ये सारा क्या हुआ, function block. Okay, so this is known as function block. Why? Because main is a function. So whatever is written inside this main, that is called block for this function block. Yes, and whatever you write inside these curly braces without any function above it, that will be treated as a block scope. Okay, that will be treated as a block scope. Okay, so let us see this example. So in void main I have this ये bracket मैंने यहाँ लगाया और हो सकता है यहाँ आप return 0 भी put कर सकते हैं. ठीक है, so here you can put return 0 और फिर ये आपका bracket बंद main का. So now if I write int a is equal to 10, printf a is %d backslash n and a, then what will be, just wait. So what will be its output, and after that you have also another printf. यहाँ पर आपका a वेरिएबल है. ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा, देखो जब भी हम एक ब्लॉक नया बनाते हैं तो ये जो a वेरिएबल है, here I am talking about a वेरिएबल, इसका जो स्कोप है वो यहाँ से शुरू हुआ जब भी ये वेरिएबल बना और इस ब्रैकेट तक आकर खत्म हो गया. यस,
तो ये अब जो a की वैल्यू है, ये ऑफ कोर्स ये printf a is 10, printf में क्या प्रिंट होगा, a is 10, बट अब ये जो a है इसका स्कोप अब यहीं तक खत्म हो गया, बिकॉज दैट इज टोल्ड बाय द ब्लॉक स्कोप। नेक्स्ट जो printf है a, तो a जो है अगर मैं इसको हटा भी देती हूँ, अगर मैं इसको हटाती हूँ तो क्या ये a इसका कुछ मतलब बन रहा है? a is percent d, which a value, which variable you are referring to, a is percent d, yes। तो अब हमारे पास में इसीलिए ये जो सेकंड printf में आपके पास में क्या आएगा, ये जो a है that will be undefined। तो इसका आउटपुट आप अपने आप से इसको रन करके देखना, जो सेकंड आपका a आएगा दैट विल बी एन अनडिफाइंड सिंबल। तो कंपाइलर आपका एरर थ्रो करेगा दैट दिस इज अनडिफाइंड सिंबल, यस। तो अगर आप यहाँ पर int a लिखेंगे ओनली देन इट कैन बी रेक्टिफाइड। व्हाई? बिकॉज दिस int a इज अनदर a, दिस इज अनदर a, और ये जो वेरिएबल है ये अनदर a है, ठीक है। इसका ये जो है ये अलग ब्लॉक है, इसका अलग स्कोप है। यहाँ पर जैसे आप लाइफ टाइम इसका कह सकते हो कि यहीं पर इट इज लाइव, यस। बट जो सेकंड है आपका, ये अगर आप ये इंट यहाँ पर एक नहीं देते हैं, सो दिस ए विल बी ट्रीटेड एज अनडिफाइंड सिंबल। इसको रेक्टिफाई करने का क्या तरीका है कि आप यहाँ पर इंट ए डाल दीजिए, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर इंट ए डाल देती हूँ तो क्या आएगा, फिर a में कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब गार्बेज वैल्यू क्यों आती है, कोई 0 क्यों नहीं आया, 1 क्यों नहीं आया, वो हम देखेंगे कि इसी में क्यों आया है, ठीक है। सो ब्लॉक स्कोप जो होता है दैट इज फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक यू कैन नॉट एक्सेस द वेरिएबल, फाइन। सो ब्लॉक स्कोप आपको यही बताता है दैट फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक we cannot access the variable। now same was the case in this example also जो हमने अभी किया है। outside the block, outside this block you cannot access this variable। तो वही अगर मैं इसको हटा देती हूँ तो इसका a का कोई मीनिंग नहीं है, यस। तो जो a आपने यहाँ पर डिफाइन किया है और डिक्लेयर किया है वो एक ब्लॉक में पड़ा है, सो दिस ब्रैकेट इज कॉल्ड ब्लॉक। इसके अंदर ही इसका स्कोप है, ओनली इन दिस स्कोप, ओनली फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड फ्रॉम दिस ब्रैकेट up till here this a variable can be used, so this is the block scope। okay, then we have another example। now I have int a, int a is the variable, there is another block here, that block says int a is equal to 10, printf a is percent d a, yes। तो उसके बाद में आपके पास में एक ब्लॉक खत्म हुआ है और फिर एक और प्रिंट है a is percent d। अब यहाँ पर क्या आएगा आंसर, नाउ इफ दिस a is 10, वो यहाँ पर a is 10 will be printed, बट ये जो a है, जो ये वाला a है, इसका स्कोप अब यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ पर खत्म है, यस। ये यहाँ पर ये खत्म हुआ, बट उसके बाद जो printf a है दैट इज नाउ रेफरिंग टू विच a, जो इसका स्कोप है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसमें हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। इसमें ये a इज कितनी वैल्यू आएगी, वो गार्बेज वैल्यू होती है क्योंकि ये जो नॉर्मल जो वेरिएबल्स रहते हैं वो ऑटोमेटिक वेरिएबल्स होते हैं और वो बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू लेते हैं अगर आप इसको आप डिफाइन नहीं करेंगे तो, ठीक है। नाउ आई हैव अनदर एग्जांपल। सो हियर it is written void check, means it is some declaration of the function, yes। then I have void main, then I have written int a, साथ में एक और ब्लॉक शुरू हुआ है जिसमें है int a is equal to 10, printf a is percent d। तो ये जो a, इंटरनल a जो है, ये वाले a का कहाँ तक लाइफ टाइम है, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। देन printf a is percent d, व्हाट इज दिस परसेंट, a is percent d, इसको रेफर कर रहा है ये पीछे वाला, ठीक है। तो ये भी हमने अभी तक पढ़ लिया। then after that I have check, check is the function call, ठीक है। जब फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल कहाँ जाता है, आपके फंक्शन की डेफिनेशन पे।
और उसमें आपने लिखा है printf %d a की वैल्यू प्रिंट करी है। क्या ये चलेगा प्रोग्राम? Will this program work? If it works, then what will be the output? Will anybody tell me? कोई बताएगा? Raise your hand. What will be the output of this program? Raise your hand. If you can tell me what will be the output of this program that is shown here. Yes, Aman? मैम जो प्रिंट एफ से जो हमने फंक्शन वो चेक जो हमने किया उसमें प्रिंट एफ की वो मेन वाले ए की वैल्यू आएगी। कौन से वाले की? जो मेन के बाद है जो ब्लॉक में जो सबसे पहले इंट ए लिखा है जिसकी वैल्यू नहीं गिवन, कोई गार्बेज वैल्यू आएगी। नहीं, बट वो तो यहाँ पर वो तो डिफाइन ही नहीं है। वो तो ये वाला ए था ना, मैंने यहाँ पैरामीटर दिया, तो इसलिए तो क्या हो? हमें पहला वाला प्रिंट एफ का बताने हैं फिर या फिर नहीं, टोटल ये आउटपुट? वाला पहले वाला तो ये a is 10 आ गया। नेक्स्ट हाँ, का a फिर is इसकी गार्बेज इसकी वैल्यू। कोई भी गार्बेज वैल्यू आ जाए उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ, फिर क्या आएगा? तो फंक्शन में कोई हमने वो किया नहीं है, कोई वेरिएबल दिया नहीं है उसमें। हम्म। तो इसका क्या प्रिंटफ में क्या आंसर आएगा? सही है? कुछ भी बता दो, हाँ कुछ भी सही है, गलत भी हो सकता है, तो फिर आई विल टेल यू, डोंट वरी। बताओ। यस गुंजन। Ma'am, it will ask for the value of A and then it will print. It will actually it will show error. It will tell you Yes, ma'am. declare Yeah. this A. ठीक है? ठीक है, ये क्यों ऐसा किया है अब ये देखो। अब ये जो A है, देखो ये जो A है, ये इसका स्कोप कहाँ है? ये हो गया, ये ब्लॉक स्कोप हो गया। ठीक है, और ये जो है प्रिंटफ, इसके लिए कौन सा इंट A पड़ा है? ये पड़ा है। अब ये जो A है, इसके लिए तो कुछ भी नहीं पड़ा ना। आपने यहाँ से कोई फंक्शन कॉल में कोई आर्ग्यूमेंट दिया कि यहाँ पर पास होके और फिर वो यहाँ पर यूज हो जाए, कुछ भी नहीं दिया। आप तो किसी प्रिंटफ, यहाँ किसी इंटीजर की बात कर रहे हैं ए, बट यहाँ पे तो मेरे पास में कुछ डिफाइन है ही नहीं ना। आपने देखो, ये चीज मैं ऐसे भी कर सकती थी, यहाँ मैं इंट ए, सॉरी, यहाँ मैं यहाँ पर ऊपर मैं या तो इंट ए दे देती, भी ये पॉसिबल था, बट यहाँ तो सिर्फ एक प्रिंट ये दिया हुआ है। क्या ये पॉसिबल है? इट विल थ्रो एन एरर। Why? Because A is not defined, so it will tell you that it is undefined symbol. Undefined symbol इसका मतलब क्या कि ये A इसको पता नहीं चला है कि क्या है। उसके लिए आपको A को डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन मतलब आपको इंट A, व्हाट इज दिस A, इज दिस अ करेक्टर और फ्लोट, क्या है वो, और उसके लिए क्या हमारा सोल्यूशन होगा कि इंट A ऊपर लिख दें। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल इज आई हैव दिस इंट A इज इक्वल टू 10। अच्छा, मैं आपको इसी में बता दूं, एक तो हमारे पास सोल्यूशन होता है कि ये इंट A मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसी चीज का सोल्यूशन मैं बताती हूँ, ये जो हम अभी कर रहे हैं। तो एक तो हो गया मेरे पास में कि इंट A मैंने यहाँ लिख दिया। दूसरा एक हमारे पास में एक चॉइस होती है, दैट इज द ग्लोबल वेरिएबल। उसको मैं क्या करती हूँ, ये देखो मैंने क्या किया है, मेरे पास में क्या है, मैं इस एग्जांपल को ना वहाँ डेव C++ में पहले लिखती हूँ, इट विल बी मोर क्लियर टू यू देन। देखो, एक तो मेरे पास में क्या ऑप्शन है कि मैं यहाँ पर इंट A लिख दूं। ठीक है, तो फिर ये चल सकता है। और फिर दूसरा मेरे पास में कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज फॉर ग्लोबल वेरिएबल्स। वो कॉन्सेप्ट आता है कौन सा? ग्लोबल वेरिएबल्स। उसका मतलब क्या कि इंट A मैंने मेन के पहले लिख दिया, इंट A मेन के पहले लिख दिया। ठीक है, तो उसमें फिर जो ये है A, नाउ दैट कैन बी रेफर्ड बाय दिस फंक्शन, तो फिर ये रेफर हो सकता है। ठीक है, अच्छा
अब आपको हो सकता है कि आज ऐसा लगे कि अरे आज ये क्या करवाई जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो सी प्रोग्रामिंग आई थी और ये तो फिर ये 10 बार इन्होंने इंट यहीं पर ए ले लिया, यहाँ पर भी ए ले लिया, क्या कर दिया है ना, ये तो खिचड़ी बना दी। तो आप ये एक चीज को देखना कि इसको मतलब जो मैं ऐसे समझा रही हूँ ऐसा सोच के ऐसा देखना, इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट। सो यू थिंक ऑफ दिस स्पेस एज यूनिवर्स, ठीक है, खाली स्पेस, ये सब यूनिवर्स है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोब हो गया, ठीक है ना, ग्लोबल एरिया। तो ये हमारे पास में ग्लोबल एरिया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि सारा इसमें आप इसमें कुछ भी रख सकते हैं, तो एवरीथिंग यू नो द स्पेस दैट कंज्यूम एवरीथिंग विल बी ग्लोबल एरिया, ठीक है। उसी ग्लोबल एरिया में आप हैश इंक्लूड ये सब लिखते हो, stdio.h लिखते हो, ठीक है। और फिर और सब क्या लिख सकते हो, अगर आप यहाँ पर कोई वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हो, इंट a लिख दिया आपने, फिर कैर b लिख दिया, ठीक है। ऐसे वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल एरिया में पड़े हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। और इसी ग्लोबल एरिया में और क्या हम कर सकते हैं, वॉइड एक फंक्शन बनाया, मैंने उस फंक्शन की डिक्लेरेशन कर दी, ठीक है, यस। इसी ग्लोबल एरिया में और मैं क्या कर सकती हूँ, एक और फंक्शन की डेफिनेशन भी दे देती हूँ, इसी फंक्शन की मैं डेफिनेशन दे देती हूँ। हाँ, जो डेफिनेशन है वो ग्लोबल एरिया में नहीं रहेगी, वो इन दो ब्रैकेट्स में कन्फाइंड रहेगी, ठीक है। मन आई विल आंसर यू, जस्ट वेट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है, और इसी के अंदर अभी मैं और क्या कर रही हूँ, इसी ग्लोबल एरिया में मैं void main नाम का भी फंक्शन बना देती हूँ। हाँ, बट जो मैं void main के अंदर या int main के अंदर जो भी कुछ लिखती हूँ वो ग्लोबल एरिया में नहीं है, वो एक पर्टिकुलर उसका ब्लॉक है। वो अगर ये फंक्शन है तो इसको मैं इस एरिया को मैं फंक्शन ब्लॉक कह देती हूँ, ठीक है, यस। तो ये जो है मेन इज ऑल्सो फंक्शन, तो जो भी इसका टोटल इस 12th ब्रैकेट से शुरू हुआ 14th में खत्म, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, ये भी एक क्या है, फंक्शन का ब्लॉक है, राइट। और जब ये सारा प्रोग्राम जिसमें रन हो रहा है, इसमें मैंने कुछ और भी ऐड कर दिया था, हैश इंक्लूड मैंने math.h ऐड कर दिया, चलो, है ना, ये प्रोग्राम कब तक चलेगा, सारा प्रोग्राम, तो ये सारा क्या हो गया, प्रोग्राम का स्कोप हो गया, ठीक है, यस। अगर मेन के अंदर मैंने कुछ और ऐसा एक और ब्रैकेट लगा के फिर से ब्रैकेट बंद करी है, तो फिर ये मेरा कौन सा, दिस विल बी नाउ ब्लॉक स्कोप, ठीक है। नाउ आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एक मिनट, अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस लेती हूँ। यस, अमन जैन, बोलो। मैम एक तो आपकी वॉइस लैग कर रही है और दूसरा मैम मेरे को सिर्फ पीपीटी वाली स्क्रीन दिख रही है डेव सी प्लस प्लस में। ओहो, वेट करो जरा। Then I'll have to explain this again. 1 minute. Just wait. Now are you able to see the screen, Dev C++? Yes. Are you able to see the screen, Aman? यस मैम। ठीक है, अब मैं ये सब दोबारा एक बार आपको सुना रही हूँ, ये पूरी कहानी, ठीक है। तो आप ये समझो कि ये सारी जो स्क्रीन है ना, इट इज ग्लोबल एरिया। ये ना समझने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। ये अपने पेपर में ये कुछ चीजें आप दो, ठीक है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है। सो दिस इज ट्रीटेड एज ग्लोबल एरिया। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, आई राइट हियर हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने। अब इसी ग्लोबल एरिया के अंदर हम कोई भी वेरिएबल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। ये आज आप नई चीज देख रहे हो कि हम ग्लोबल एरिया में इस खाली, ये सब मेरा ग्लोबल एरिया है, तो इसके अंदर मैं नए वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकती हूँ। हमने कौन से वेरिएबल्स पढ़े हैं, डेटा टाइप में हमने पढ़े ना कि कोई इंट में आप फिर वेरिएबल का नाम दे सकते हो। मैं करेक्टर में मैंने बी ले लिया, फ्लोट में मैंने ऐसे सी ले लिया, ठीक है। तो मैं इन वेरिएबल्स को अब आप, हमने तो पहले मेन के अंदर पढ़े थे ना, अब हम इनको बाहर भी लिख सकते हैं। ये कौन सा एरिया है,
हमने अभी क्या पढ़ा है, मैंने आपको क्या बताया कि ये कौन सा एरिया है, इट इज ग्लोबल एरिया। यस, इट इज ग्लोबल एरिया। इनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर माय ग्लोबल वेरिएबल्स। गॉट इट? ठीक है, जो बाहर पड़े हैं ना मेन से या किसी भी फंक्शन से, उनको हम ग्लोबल एरिया में हम बोल रहे हैं कि ये ग्लोबल एरिया में पड़ा है। ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल्स हो गए, ये वेरिएबल्स हैं तो ग्लोबल वेरिएबल्स। इसी ग्लोबल एरिया में मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं एक फंक्शन की डेक्लेरेशन लिख सकती हूँ। तो मैंने ये फंक्शन बनाया और इसकी डेक्लेरेशन लिख दी, है ना। और मैं क्या कर सकती हूँ मैंने जो इंट मेन में लिखती हूँ वो भी तो इसी के अंदर होता है। जो मैंने मेन बनाया है वो भी किसके अंदर है, वो भी ग्लोबल एरिया के अंदर ही तो बनाया है, ये सब ग्लोबल एरिया था। हाँ, जो मैं मेन के अंदर लिखूंगी वो ग्लोबल एरिया में नहीं है, आए वो तो मेन का पार्ट हो गया ना, वो ग्लोबल एरिया में नहीं है वो। ठीक है, यस। ये मेरे पास में जो ये वाला रहेगा, जो भी इसके अंदर में कोड लिखा है मैंने, तो वो सब इसका पार्ट है, वो मेन फंक्शन का पार्ट है, उसको मैं ग्लोबल एरिया में नहीं रख रही हूँ। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं हम इस ग्लोबल एरिया में, इसके अंदर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया है ना। ये आपका यहाँ कोड हो सकता है। ऐसे कोई और फंक्शंस आप ले सकते हो, वेरिएबल्स ले सकते हो, आप उनको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में वेरिएबल्स होते हैं जो मेन के बाहर हमने ऐसे यहाँ पर इसमें रखा, दे आर कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल्स। इसी ग्लोबल एरिया में आप और भी हेडर फाइल्स इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने math.h का किया था, ऐसे कुछ और आप यहाँ पर वो प्री प्रोसेसर्स होते हैं, हैश डिफाइन करके पाई की वैल्यू को, ऐसा भी होता है पाई 3.14 आपने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये सब ग्लोबल एरिया में ये सब हो सकता है। ठीक है, और ये जो ग्लोबल एरिया में जो वेरिएबल्स होते हैं, अगर मैंने ये इंट ए यहाँ पर डिफाइन कर दिया तो मैं डायरेक्टली प्रिंटफ मेन में भी लिख के इसको चला सकती हूँ, और मैं डायरेक्टली प्रिंटफ इस फंक्शन के अंदर भी चला सकती हूँ। तो क्योंकि ग्लोबली एक आपने डिफाइन कर दिया है एक वेरिएबल को, तो फिर मैं इसको यहाँ अंदर कैसे भी इसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा एक ग्लोबल वेरिएबल्स। अब अगर नाउ आई विल शिफ्ट दिस एग्जांपल, है ना। अगर मेरे पास में इस एग्जांपल में आई डोंट थिंक सो इफ आई हैव रिटन हियर, अगर इस एग्जांपल में मैंने क्या किया था, ये मेरे पास में एग्जांपल थी, अगर मैंने यहाँ पर इस printf में खाली यहाँ printf a है, तो पहले मैं अब ये चेक करूंगी कि क्या कोई ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं है। अदरवाइज अगर ये ऐसा ना होता, अगर ये int a इधर ना होता, तो फिर ये अनडिफाइंड सिंबल एरर आ जाता हमारे पास में। ठीक है, अगर फिर इसका सोल्यूशन क्या है कि आप इसमें यहाँ या तो यहाँ पर वेरिएबल डाल दीजिए इंट ए, या फिर आप यहाँ पर वेरिएबल डाल दीजिए, उसको डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, ओके। So after that, I have another example. Int a is equal to 10. Int main, see why I am taking all variables a. मैं हो सकता था मैं a b c अलग अलग ले लेती, तो फिर आपको बहुत इजीली समझ आ जाता, बट जानबूझ के मैंने यहाँ सब a लिखा है so that जो confusion रहेगी आपको, that will get resolved. ठीक है, at this point of time. Otherwise a b c में तो कोई भी differentiate कर देगा. So this int a is global variable. Then in main I have int a is equal to 20. ठीक है, उसके बाद एक ब्लॉक शुरू हुआ है। ठीक है, ब्लॉक शुरू हुआ। अब ब्लॉक क्या होता है, अब इस एग्जांपल में आ जाइए जो हमने अभी किया। ब्लॉक क्या होता है, देखो एक फंक्शन जहां से शुरू हुआ जहां खत्म हुआ, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, मेन को आप क्या बोलते हो, फंक्शन है ना, मेन फंक्शन। सो दिस इज फंक्शन ब्लॉक। वहां से 11th लाइन से शुरू, ये 13th लाइन पे खत्म। और ऐसे ही जो FUNC फंक्शन है, ये कहाँ से शुरू हुआ, ये 16th या जो भी इसकी लाइंस है, यहाँ से शुरू यहाँ पर खत्म। इस चीज को क्या बोलेंगे हम, दिस फंक्शन ब्लॉक, राइट। लेकिन अगर मेन के अंदर मेरे पास में एक और यहाँ पर ब्रैकेट लगी है और ये खत्म हो रही है, इस चीज को मैं बोलती हूँ
ये मेरा अलग ब्लॉक है, इट इज डिफरेंट ब्लॉक, इसको हम ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक में अगर ये फंक्शन है, इसका स्कोप कहाँ है, मेन, आप देखते हो ना मेन प्रोग्राम यहाँ से शुरू, देखो ये ब्रैकेट, ये डेव सी प्लस प्लस अपने आप बता देता है कि कहाँ से कहाँ तक स्कोप है। आपने एक ब्रैकेट यहाँ एंड यहाँ कर्सर लेकर आए और साथ के साथ क्या हुआ, ये आपको 17th लाइन पे भी रेड कलर का ये हो गया ब्रैकेट। इसका मतलब क्या है, इस फंक्शन को चलाने के लिए ये सारा इसका स्कोप है। yes, this is function block और ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा। Similarly, if I put this put cursor here, ये ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट में राइट ब्रैकेट तक चला गया, ठीक है। और ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम डिफाइन करते हैं, आप मोटी चीज ये देखो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर मैंने int a लिखा है इसके अंदर, तो फिर ये यहाँ पर भी इस ब्लॉक के बाहर आप इसको printf यहाँ पर कैसे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। यस और लेकिन अगर मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऐसे लिखा printf, और मैं लिख रही हूँ ऐसे ही printf, और मैं इसको कॉपी करके यहीं पर लिख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अब ध्यान से एक मिनट चीज देखो, ये यहाँ मैंने क्या लिया, int a इज इक्वल टू 10, और यहाँ पर भी प्रिंट किया, यहाँ पर भी प्रिंट किया। अब आप ये सेम चीज तो आप वहां पर भी करते थे, इफ में भी करते थे, या फॉर लूप में भी ये सब यहाँ पर स्कोप देते थे। तो इफ दिस a इज डिफाइंड, आफ्टर दैट यू आर प्रिंटिंग द वैल्यू इन अनदर ब्लॉक, हार्डली मैटर्स। यहाँ पर भी आपके पास में 10 आएगा, यहाँ पर भी आपके पास में 10 आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि a पहले डिफाइन हो चुका है, ये आपका a यहाँ पर पहले डिफाइन हो चुका है। लेकिन देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप यहाँ पर इस a को एक नए ब्लॉक में दोबारा से इसको डिक्लेयर करते हैं, तो फिर printf की वैल्यू चेंज होगी। यस, और यहाँ पर इसकी बाय डिफॉल्ट क्या है, गार्बेज वैल्यू आएगी, ठीक है। यहाँ पर गार्बेज वैल्यू आएगी। तो I repeat what I am trying to say is, whenever you are declaring one variable, ये int a is equal to 10, अगर आपने यहाँ पर इसको दोबारा डिफाइन नहीं किया है किसी ब्लॉक में, तो फिर ये a is equal to 10 वैल्यू ही लेकर चलेगा, and this a will also print in value here in the 13th line, similarly in 16th line also. Why? Because this is, everything is now in the main program, okay? yes, main program के अंदर है। लेकिन हमारे पास में वैल्यूज का डिफरेंस तब आता है जब आप एक ब्लॉक के अंदर रीडिफाइन करते हैं किसी वेरिएबल को। अगर मैं इसके अंदर अब 30 लिख देती हूँ, तो यहाँ पर 14th लाइन के लिए अगर आप printf a करते हैं तो क्या आएगा, then it will give you output as 30, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये एक अलग ब्लॉक है, इसका अलग लाइफ टाइम है, और इसका यहाँ से 13th लाइन से 15th लाइन तक स्कोप है इसका। Got it? Only if you redefine it. If you do not redefine it, then it will carry on with its initial value, जो पहले आपने previous value आपने दी है, और फिर यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो now we'll move forward. So I'll skip these. Okay, let us go through this example. I have this int a is equal to 10. ये क्या है, ये हमारे पास में global variable है। Then int main, in int main I have int a is equal to 20. क्या, अच्छा अब आप ये भी मत सोचना कि a तो आपने इतनी बार लिख दिया तो a तो एक ही बार डिफाइन होता है, ऐसे नहीं होता। आप कितने भी ऐसे वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे हमने कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू में देखा था, नॉट इन रेफरेंस बट इन कॉल बाय वैल्यू में हमने देखा था कि सेम नाम के अलग अलग आप वेरिएबल्स भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो int a is equal to 10 is global variable. This int a is equal to 20, इसका स्कोप क्या है, मेन, होल मेन प्रोग्राम। और यहाँ पर आपने int a यहाँ पर आपने डिफाइन किया है, ठीक है। नाउ यू आर सेइंग a is equal to 10, a is equal to a plus 10, ठीक है। और फिर यू आर सेइंग printf
A is %D और ये स्कोप खत्म एंड देन अगेन यू आर प्रिंटिंग दिस A, ठीक है। अब इसमें आंसर क्या आएगा? अभी आपका फर्स्ट जो आपका ये है int A printf, तो पहले मेन प्रोग्राम में हम जैसे जाते हैं हमारे पास में क्या है int A printf A is %D। तो यहाँ पर int A की आपने कोई भी वैल्यू नहीं दी है, आपने इसको डिफाइन नहीं किया, सो ये गार्बेज वैल्यू यहाँ पर आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक। अब नेक्स्ट में आपके पास में क्या है? नाउ कैन यू सी इवन इफ यू इरेज दिस, आपके पास में ये क्या है? इट विल बी कंसिडर्ड। कैसे हम करेंगे? अगर मैंने उसको हटा दिया तो भी क्या कैसे है, कैरी फॉरवर्ड कैसे हो रहा है? a इज इक्वल टू 20 एंड a इज a प्लस 10, फिर आप उसको प्रिंट करा रहे हो, मतलब आप दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर रहे हो। तो कौन सी वैल्यू कैरी फॉरवर्ड होती है? यही 20। दिस 20 प्लस 10 विल बी 30 एंड दिस 30 विल बी प्रिंटेड, ठीक है। और जो भी अब A में है, नाउ इट इज रेफरिंग टू दिस A ना, जो भी आपके A में है वही अब यहाँ पर A में प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो सेम वेरिएबल यही A वाला फॉलो हो रहा है, इसी A में A प्लस 10 हुआ था और वही A की बात हो रही है। ये कोई मेन से बाहर तो नहीं गया, ये सारा ही मेन है ना, मेन के अंदर की ही बात हो रही है। अगर इसके बाहर कुछ प्रिंटफ होता तो हमने ये सोचना था कि ये int a इज इक्वल टू 10 के बारे में हम सोच सकते थे, ठीक है। इस एग्जांपल में ग्लोबल वेरिएबल वैसे ही दिया गया है, साथ में आपके पास में ये एक डिफरेंट स्कोप का यहाँ पर आंसर दिया था, ठीक है। तो a इज पहले गार्बेज वैल्यू, देन a इज 30 विल गेट प्रिंटेड, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स, सो एग्जांपल आपको मैंने बता दिया कि अगर हाँ जैसे ये एक एग्जांपल है, तो मेरे पास एक फंक्शन है और यहाँ पर एक वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। तो ये मेन के अंदर हमने अभी जैसे int a इज इक्वल टू 20 भी डिस्कस किया था, int a, ये सब सेम एग्जांपल आ रही है, बट इसमें पिछली एग्जांपल ही है, बट इसमें हमने क्या किया, चेक नाम का एक हमने फंक्शन यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। तो आप ये देखो, नाउ इफ आई टॉक अबाउट वेरिएबल्स, तो ये जो ग्लोबल वेरिएबल है ना, इसका स्कोप क्या रहता है, मतलब कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, इसका सारा प्रोग्राम है। Okay, so for this variable whole program is the scope, and for this int a is equal to 20 कहाँ कहाँ ये यूज हो सकता है? पूरा मेन प्रोग्राम। मेन मीन्स फंक्शन, फंक्शन इज मेन, क्या होता है? फंक्शन होता है ना, सो क्या है? फंक्शन स्कोप, इट हैज फंक्शन स्कोप। देन वी हैव int a, इसका कहाँ तक स्कोप है? इसका ब्लॉक स्कोप है, ओनली टिल दिस ब्लॉक, व्हेन दिस ब्लॉक opens here and it ends here, तो इस int a का ब्लॉक स्कोप है, ठीक है। What are storage classes? How do we write these storage classes? When we talk about the storage class, how do we write? First we have to write the storage class, जो storage class है, then we have to write the data type of the variable, then we have to write the identifier of the variable. Identifier मतलब आप उसको क्या नाम देना चाह रहे हैं, है ना। Example क्या है? Auto int a, a is the variable, int is the data type and auto is the storage class specifier, तो हमने लास्ट क्लास में भी किया था कि ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न एंड देन स्टैटिक, तो ये चार हमारे पास में होते हैं। ये बताते क्या हैं? व्हाट डू दे रिप्रेजेंट? एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स वेयर वेरिएबल विल गेट इट्स मेमोरी एलोकेशन, कहाँ पर स्टोर होगा हमारा वेरिएबल। रिप्रेजेंट्स द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, डिफॉल्ट वैल्यू भी बताता है। जैसे मैंने आपको बताया कि गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी, इसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू उसकी टोटल क्या रहेगी? गार्बेज वैल्यू रहेगी, जीरो रहेगी, क्या रहेगी? इट टेल्स अबाउट दैट। It represents the scope of the variable and it represents the lifetime of the variable, कि कहाँ कहाँ आपके प्रोग्राम में वो यूज होगा। So this table is very important. So first is auto, जो ऑटो वेरिएबल होता है। देखो आप नॉर्मली हम जो भी इसमें लिखते हैं ना, जैसे मैंने मेन में यहाँ लिखा int a, या फिर यहाँ मैंने लिखा char c, ये बाय डिफॉल्ट क्या है? बाय डिफॉल्ट ये ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक। तो चाहे मैं इसके आगे ऑटो लगाऊं या ना लगाऊं, इट इज वन एंड द सेम थिंग। सो यू कैन पुट ऑटो
before this or it or not, it's your wish. ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ऑटो होते हैं। और ये कहाँ पर स्टोर होते हैं? दे आर स्टोर्ड इन रैम, रैम में स्टोर होते हैं ये। एंड बाय डिफॉल्ट इनकी क्या वैल्यू होती है? गार्बेज वैल्यू। अगर आप कोई वैल्यू यहाँ पर असाइन नहीं करेंगे, इफ यू डू नॉट असाइन एनी वैल्यू हियर एंड इफ यू प्रिंट इट, इट विल बी गिविंग यू द गार्बेज वैल्यू। देन इसका स्कोप जो होता है वो लोकल होता है एंड इट इज, इट्स लाइफ टाइम इज विद इन द फंक्शन, राइट। देन एक्सटर्न, एक्सटर्न इज यूज्ड फॉर ग्लोबल वेरिएबल। जैसे आपने यहाँ पर इस इंट ए को ग्लोबल वेरिएबल बनाना है, ठीक है, तो एक तो ऑप्शन आपके पास में है कि आप यहाँ इंट ए लिख दीजिए, तो ये ग्लोबल वेरिएबल बन जाएगा, ग्लोबल एरिया में लिख दीजिए। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो पुट एक्सटर्न कीवर्ड बिफोर दिस int, and then this a variable int a, this a variable will be considered as global variable। तो आप इसको इसके अंदर extern भी लिख सकते हैं, main के अंदर भी वो, then also this a variable will be considered as global variable। इसकी garbage value होती है सॉरी इसकी by default value 0 होती है, गार्बेज वैल्यू नहीं है लेता, इसकी बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू होती है एंड इट्स स्कोप इज ग्लोबल एंड इट्स लाइफ टाइम इज टिल द एंड ऑफ मेन प्रोग्राम। आप इसको कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ये कब तक चलेगा? जब तक प्रोग्राम खत्म नहीं होता। ऐसे ही हमारे पास में स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं, आप स्टैटिक वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, वो भी यहाँ पर जैसे एक किसी वेरिएबल के आगे आपने स्टैटिक लिख दिया, ठीक है, तो इसको आप मेन के अंदर ही डिफाइन करेंगे। देन यहाँ पर इसका बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यू होती है एंड इट्स स्कोप इज लोकल। जहां पर भी आपने इसको डिफाइन किया, लोकल इन द सेंस यहाँ मेन में है तो ये ए जो है वो इस मेन के अंदर ही यूज हो सकता है, इसको बाहर नहीं यूज कर सकते। एंड इट्स लाइफ टाइम इज टिल होल प्रोग्राम, टिल द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम, ठीक है। और ये क्यों, इस स्टैटिक का फर्क क्या है? दैट इट रिटेन्स वैल्यू बिटवीन मल्टीपल फंक्शन कॉल्स। तो अगर मैं एक फंक्शन में अगर मैं इस इंट ए को किसी और फंक्शन में भी यूज करती हूँ तो भी वो रिटेन करके रखेगा वैल्यू। दो फंक्शंस में अगर मैं यूज करती हूँ तो भी रिटेन करके रखता है वैल्यू को। लास्ट इज रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है, जैसे आप यहाँ पर इसके आगे यहाँ रजिस्टर लिख सकते हैं। सो रजिस्टर जो होता है दैट इज फॉर फास्ट कैलकुलेशंस, ठीक है। तो उसके लिए ये जो अगेन बाय डिफॉल्ट इस ए की वैल्यू अगर आप नहीं यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू गार्बेज वैल्यू रहती है और इसका स्कोप भी यही फंक्शन तक होगा जिस फंक्शन में इसको यूज किया जा रहा है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब हम सीपीयू की बात करते हैं तो जब हमारा पहले सीपीयू में क्या होता है, आपका डेटा एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो जब डेटा आपका एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपका जो RAM है that also holds the data, but after going to RAM cache memory also, then this data is stored into CPU registers। आपका जो डेटा फाइनली जो रहता है वो CPU registers में स्टोर रहता है, ठीक है, CPU registers में स्टोर रहता है और फिर उसके बाद में कंट्रोल यूनिट के पास में अरिथमेटिक यूनिट के पास में ये जाता है डेटा एग्जीक्यूट होने, ठीक है। These registers are very very near to the actual machine that has to perform the calculations। तो इसीलिए अगर आप कोई डेटा को रजिस्टर में रखते हैं तो that will give you faster calculation। तो आप उसको आप चेक कैसे करके देखोगे? आप रजिस्टर नाम का ऐसे वेरिएबल बनाइए, तो लूप में डाल के उसको चेक करिए, आप उसका एग्जीक्यूशन टाइम देख सकते हैं, जैसे कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन टाइम उसका कम आ सकता है कंपैरेटिवली। अगर रजिस्टर में जगह नहीं होती है देन इवन इफ यू राइट इट एज रजिस्टर तो आपका ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ये आपका काम करेगा, ठीक है। फिर जरूरी नहीं है कि वो फास्ट चले उतना, बट इट विल बी कंसिडर्ड एज ऑटोमेटिक इफ सम प्लेस इज नॉट देयर इनसाइड द रजिस्टर फॉर योर डेटा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? So now I leave you. If you have to ask any questions, please ask me. If you have any questions, please ask me. Other portion of
this PPT we can cover in next lecture. अभी तक आपको जो पूछना है कुछ इसमें वो पूछिए please. Please raise your hand if you have any question because only 1 minute is left. Do you have to ask any question? Any questions? Okay, thank you.